Okay. Pb3O4, in which the oxidation state of the plate is 8/3, Fe3O4 8/3, Fe2O3 में 6/2 means x equals to 3 D Mn3O4. Then the oxidation state of manganese is 3x minus 8 equal to 0. Then 3x equals to 8, then x by 8/3. So 8/3, 8/3, 8/3. The different oxidation state is the Fe2O3. Fe2O3. Which one of the following compound does not exhibit a different oxidation number of the same element? Okay. The correct answer is C. Among the given species compounds, only Fe2O3 does not exhibit the different oxidation number of Fe. In this species can be calculated as, let X the oxidation state of the iron is 2x plus 3 minus 2 is the charge of the oxygen equals to, there is a net charge is 0. Then the oxidation state of the Fe2 in Fe2O3 is plus 3. Okay. Next question. Which one of the following statement about the glass is not correct? The glass is often said to be a supercooled liquid. Okay. Glass has no definite melting point. Okay. Soda glass is harder than Pyrex glass, and boron is present in the Pyrex glass. Okay. Not correct. याद रखिए. Yes. Yes. Glass is often said to be supercooled liquid. Okay. It is correct. Okay. Glass has no definite melting point. Okay. Soda glass is harder than the Pyrex glass. This statement is wrong. Boron is present in the Pyrex glass is the correct statement. And therefore, the answer will be C option. Pyrex glass is harder than soda lime glass. Okay. Next. Which one of the following statements is correct? Both boiling and evaporation are surface phenomena. Wrong. Indian chemistry. Which one of the following statement is correct? Both boiling and evaporation are surface phenomena. This statement is wrong because the boiling phenomena is the bulk phenomena and the evaporation is the surface phenomena. Boiling is a surface phenomenon, but evaporation is bulk phenomena. Yes, correct statement is boiling is the surface. Wrong. Both boiling and evaporation are bulk phenomena. Wrong. And boiling is a bulk phenomena, but the evaporation is the surface. Is the correct answer will be D option. Next question. Which one of the following statement about the diamond and graphite is not correct? One thing keep in mind that the carbon of the diamond is sp3 hybridized, and the graphite, the carbon of the graphite is sp2 hybridized. Okay. Diamond has tetrahedral structure, whereas graphite has the hexagonal planar structure. Okay. Both physical and chemical properties of diamond and graphite are different. Wrong. Okay. Graphite is soft, but diamond is hard. Graphite is good conductor of electricity, while diamond is not. Thank you. The diamond and the graphite are the allotropes of the carbon. The physical property may be different, but not the chemical property. Therefore, both the physical and chemical properties of the diamond and graphite are different is a wrong or incorrect statement. The raw material used for the manufacture of Portland cement are. The raw material used for the manufacture of Portland cement are lime, silica, sulfur dioxide.
lime silica, carbon dioxide, lime silica and alumina, and lime silica and boric acid. Yes, one thing in mind, the Portland cement is manufactured by the lime silica and alumina. Okay, lime is calcium oxide, quicklime, and the silica is SiO2, and the alumina is nothing but the Al2O3. Al2O3. Okay, the Portland. Next, which one of the following statement about the water is not true? Hydrogen bonds are present in the liquid water. Okay, water has a high boiling point. Water has a high heat of fusion. Water is a non-polar molecule. Not true. Yes, hydrogen bond is present in the water molecule, liquid water. Water has a high boiling point. Water has a high heat of fusion. But water is a non-polar molecule is the incorrect or not true statement. Okay, water is a polar molecule in which the central oxygen atom is sp3 hybridized. Okay, the structure of water will be the oxygen is attached with hydrogen and hydrogen. Okay, there is a lone pair of oxygen. Okay, is a partial positive charge, partial positive charge. There's a partial negative charge. Is a polar molecule. The incorrect statement will be water is a non-polar molecule. A sample of soft soap contains potassium. As you know very well, the soap is the sodium and the potassium salt of fatty acids. Okay, so are the sodium or potassium salt of fatty acids. There are two types of soaps, soft soap. Soft soap are the potassium salt of fatty acids. Therefore, the soft soap contains potassium as an element. Which one of the following does not represent the salt? Calcium carbonate. Yes. Keep in mind lime water. Okay. Chalk, limestone, marble. Chalk is nothing but the calcium carbonate. Limestone is also calcium carbonate. Marble is also calcium carbonate, but not the lime water. Okay. Lime calcium carbonate is also known as the limestone and has a molecular formula of calcium CaCO3. It is found in the nature in the form of chalk, marble, etc. Thus, the limestone, chalk, and marble represent the calcium carbonate, whereas the lime water is aqueous solution of calcium hydroxide. Lime water, the correct molecular formula for the lime water is calcium hydroxide, Ca. Okay, the correct answer will be lime water. Which one of the following substances is not a mixture? Tin is the element. Element are the pure substance. Soil is a mixture. Seawater is a mixture. Okay, mixture, mixture. Air is a mixture of gases. Seawater is also a mixture. Thus, the correct option will be A. Tin is not a mixture. Which one of the following is termed as a dry ice? Yes, dry ice, the solid state of the carbon dioxide.
Net movement of water from a dilute to a concentrated solution through a selective permeable membrane is called as. Let us consider one container. Okay, special membrane is called as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. What is it? Low concentration. Low concentration. High concentration. Is the flow from low concentration to the high concentration, then the process is called as the osmosis. Process is called as the osmosis. The net movement of water from a dilute to a concentrated solution through a selective permeable membrane is called as the osmosis. The osmosis. Okay. If the low concentration, high concentration, if the flow from high concentration to low concentration is called as a diffusion. It's called as diffusion, and in other words, it is also called as the reverse osmosis. Reverse osmosis is very well known. Nowadays, it is used as a RO water. RO, reverse osmosis. Okay, so the net movement of water from a dilute to a concentrated solution through a selective permeable membrane is called as osmosis. Then, which one of the following statement regarding the cathode ray is not correct? You are very well known about the cathode rays. There is a glass tube. Two electrodes are there connected with battery. Okay, the cathode electrode. Okay, anode electrode. The question is not correct, Wooden. Regarding the cathode rays. Cathode ray particles are electron. Correct. The statement is correct. Cathode ray particles start from anode. Yes, wrong. Cathode ray starts from the cathode. In absence of electric and magnetic field, cathode ray travel in straight line. Okay. A television picture tubes are cathode rays. Yes. These statements are correct. The cathode ray particle starts from the cathode and move towards the anode. But the not correct statement will be cathode ray particle starts from the anode and move toward the cathode. Is a wrong. Cathode starts from the cathode and aims up to the anode. So the answer will be option B. Next, a very large volume of hydrogen can be accommodated by making non-metallic hydride, hydrogen peroxide, non-stoichiometric hydride, alkali metal hydride. Means large volume of hydrogen can be accommodated by the making non-stoichiometric hydrides. Hydrides are the compounds are formed by adding hydrogen in it. Okay, so non-stoichiometric, no calculation, and there is no stoichiometric coefficient present in it. The large volume of hydrogen can be accommodated by making the non-stoichiometric hydrides. Such hydrides are formed by some of the metal, palladium, platinum. This property of hydrogen has potential for hydrogen storage. Which one of the following is not a monoatomic element? Copper is a monoatomic. Helium is a monoatomic. Barium is a monoatomic, but iodine is diatomic. So the correct option will be C. Which one of the following represent the correct order of electron releasing tendency of metals?
Okay, zinc, copper, silver, silver, copper, zinc, silver, or copper, silver, or zinc. The correct order of electron releasing tendency of given metal is zinc, then copper, then silver. Zinc loses 2 electron easily, then copper 2 electron easily, then silver 1 electron lose easily. So the correct order of electron releasing tendency of the metals are zinc, then copper, then silver. Next question. Which one of the following energy is stored in the links between the atoms? Energy between the atoms. Exactly the chemical energy. Correct answer will be chemical energy. Why not nuclear energy? Nuclear energy, energy between the nucleus, okay, or stored in a nucleus. Potential energy, the energy of the position and gravitational potential energy. Thermal energy, the heat is the vibration or movement of the atoms and the molecule in the substance. So the energy is stored in the links between the atoms are the chemical energy. Which one of the following minerals is used as a fuel in nuclear power stations? Bauxite, quartz, feldspar, or pitchblende? Pitchblende. Pitchblende is the mineral. Molecular formula is UO2. UO2, but also contain UO3. Is the oxides of uranium. Is oxides of uranium. Pitchblende is a radioactive uranium-rich mineral which is used as a fuel in nuclear power station. Okay, is a radioactive uranium-rich mineral. Okay. Next, which one of the following is not a synthetic detergent? Is not a synthetic detergent. Synthetic detergents are chemically alkyl sulfate or alkyl sulfonate. Alkyl sulfate or alkyl sulfonate, ammonium salt of long chain fatty acids. Thus, okay, option D is not a synthetic detergent, while remaining options contain synthetic detergents. Means sulfonate, ammonium salt, okay, alcohol is not a synthetic detergent, is the option D is correct option. Then, which one of the following is an example of clean fuel? Coke, propane, petrol, or wax? Propane. LPG contains, as you well very known, the LPG. LPG contain propane and butane. Propane and butane. The propane is the clean fuel. Next, which one of the following metal does not react with cold water? Calcium react with cold water, potassium react with cold water, but the magnesium does not react with the cold water. Sodium also react with the water. Magnesium does not react with cold water but reacts with hot water. When magnesium react with hot water, then form magnesium hydroxide and releasing 2H means H2. You can directly use magnesium react with water molecule, okay, water molecule, and use magnesium oxide plus hydrogen. Means the magnesium react with hot water but not cold water. On the other hand, calcium, potassium, sodium are react with cold water. Thus the correct option will be C option. Next. In which of the following pairs are isoelectronic ions?
isoelectronic ion A, B, C, D. Mg2 plus Ar, Na plus O2 minus Al3 plus Cl minus K plus Ne. In option A, magnesium 2 plus, the atomic number of magnesium is 12, but there is 2 positive charge, means the electron decreases by 2, then the total electron present in Mg2 plus is 10 electron. Argon is the noble gas, the atomic number and the electron will be 18. Na plus, the atomic number of sodium is 11, but the one positive means the 10 electron. Oxygen, the atomic number of oxygen is 8, but 2 minus charge means 2 additional electron, 2 extra electrons, and 8 plus 2 is the 10 electron. Al3 plus means the atomic number or the number of electron present in the aluminum is 13, but 3 positive charges are there, means the total number of electron will be 10 electron. Chlorine, the atomic number of chlorine, number of electrons in chlorine is 17, but the extra electron it is, then the number of electron is 18 electron. Then K positive. K positive means the potassium has the electron 19, but one positive charge is there, then it is 18 electron. And neon is the noble gas, contain 10 electron. Isoelectronic species, the species having the same number of electron. Na plus and O2 minus have same electron. Thus the correct option will be B option. Which one of the following is used as a binder in paints? Binder are the substances that hold the particle of pigment together in paints. Yes, the silicones are the alkyl SiO, are the binder in paints. Binder means the substances that holds the particle of pigment together in the paints. Okay, titanium oxide TiO2, Novolac, or phthalocyanine, or last is the silicones. Silicones, they are the synthetic organosilicon polymer containing repeated R2SiO unit. Yes. The basic scientific principle behind a nuclear reactor is nuclear fusion, controlled nuclear fusion, uncontrolled nuclear fusion, or controlled nuclear fusion. Yes. The basic scientific principle behind a nuclear reactor is controlled nuclear fusion. Controlled nuclear fusion. Next. Which one of the following could be the melting point of iron? 250 degrees Celsius, 37 degrees Celsius, 500 degrees Celsius, and 1500 degrees Celsius. The melting point of iron is 1500 degrees Celsius. Which one of the following statement is not correct for the given reaction? FeCO4 gives FeSO4 plus copper. Iron is a reducing agent. The solution turns green in color after the reaction. Copper is a more reactive metal than the iron. Okay, then copper is a more reactive metal than iron.
is an incorrect statement. Okay, as you studied in previous classes, the in displacement reaction, more reactive and less reactive metal. Less reactive metal is displaced by the more reactive metal, in which the option C is copper is a more reactive metal than the iron. It is not correct. So the answer will be C. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution. Fe plus CuSO4 aqueous gives FeSO4 plus copper. In the given reaction, iron displaces copper from its solution. Thus, the copper is less reactive than the iron. Therefore, option C is the incorrect, while the remaining options are correct. Next, which one of the following? Which one of the following is an organic acid? Hydrochloric acid. The molecular formula of hydrochloric acid is HCl. Nitric acid, HNO3. Acetic acid, CH3COOH. And the sulfuric acid is H2SO4. Which one of the following is an organic acid? Yes, the organic acid is the acid which contains carbon in their molecule. Which acid contains carbon in the molecule? Acetic acid. So the acetic acid is termed as an organic acid. Okay, so the correct option will be C. Next, dinitrogen and dioxygen are the main constituent of air, but they do not react with each other to form oxides of nitrogen because nitrogen is also present in air, oxygen is also present in air. Why both are not react in air? They do not react with each other to form oxides of nitrogen. Why? Because the reaction requires initiation by catalyst. Oxides of nitrogen are unstable. The reaction is endothermic and requires very high temperature. The stoichiometry of nitrogen and oxygen in air is not ideal for the reaction to take place. Yes, the correct option will be the why do not form the oxides of nitrogen because the reaction between nitrogen and oxygen is endothermic. Endothermic means in which the heat is absorbed. It requires high temperature, so the reaction is not occur. The reaction of dinitrogen and the dioxygen is endothermic and require very high temperature. So the answer will be option C. Next question. The equivalent weight of oxalic acid in C2H2O4.2H2O. Equivalent weight पूछा है यहाँ पर. Equivalent weight of C2H2O4.2H2O. Yes, you can easily find out the equivalent weight of that acid. Formula will be equivalent weight is equals to molecular weight divided by n factor. Molecular weight divided by n factor. First, you have know to a molecular weight of that oxalic acid. C2 means 24, H2 means 2, O4 means 64, 1 water molecule 18, then the 2 water molecule will be 30, 36, 6, 10, 6. (126). The molecular weight of the C2H2O4.2H2 is 126, and the n factor will be how many hydrogen in it? 2 divided by 2. 126 divided by 2 is 63. Is 63. So the correct option will be B. Correct option is 63. Or the formula for the equivalent weight? Molecular weight divided by n factor. Okay. What is n factor? For acid is the number of hydrogen atoms. For base, number of OH. For salt, number of positive charges.
On exposure to moist air, copper gains a green coat on its surface. When copper exposed to air, it gains green coat on its surface due to the formation of which one of the following compounds? Okay, when copper is exposed to air, the green coat on its surface due to the formation of which one of the following compound? Copper carbonate, okay, copper oxide, copper sulfate, or copper nitrate. Yes. When copper is exposed in air, moist air, therefore moist water आ गया. Water contain carbon dioxide as well as the oxygen. Then the copper convert into the copper carbonate. Carbonate. Okay. The surface, the green coat on its surface due to the formation of copper carbonate. The correct answer will be A. Next, which one of the following will not produce carbon dioxide on reacting with an aqueous solution of hydrochloric acid? Okay, which one of the following will not produce carbon dioxide? Limestone, chalk, quicklime, marble. Okay, chalk is the calcium carbonate, quicklime, CaO, marble, calcium carbonate. Okay, yes, and the limestone is also calcium carbonate. Okay, this carbon dioxide, sorry, carbon dioxide. The calcium oxide means quicklime, not produce carbon dioxide on reacting with aqueous solution of hydrochloric acid. When one calcium carbonate react with HCl, gives calcium chloride. Okay, calcium chloride, H2O, and carbon dioxide. Limestone produce carbon dioxide, chalk also produce carbon dioxide, marble also produce calcium carbonate, but the quicklime means calcium oxide not produce carbon dioxide on reacting with an aqueous solution of hydrochloric acid. So the correct option will be B. Which one of the following substance is not a mixture? Ice is the solid form of the water, pure water. Air is the mixture of gases. Ice cream, also mixture. Honey is also mixture. So the answer will be A. Okay. Next. Tooth enamel is made up of which one of the following calcium compound? Calcium carbonate, calcium sulfate, calcium hydroxide, or calcium phosphate? Yes, the tooth enamel is made up of calcium phosphate. Okay. The molecular formula of the calcium phosphate will be Ca3PO4 twice. Okay. The calcium phosphate. Next. What a question. The atomic number of an element is 8. Atomic number is 8. How many electron? As you know, the atomic number of 8 is oxygen. Okay, oxygen. How many electron will it gain to form a compound with sodium? सोडियम मीन्स ऑक्सीजन को सोडियम के साथ में कंपाउंड बनाने के लिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? एज यू नो वेरी वेल, द चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -2 and the charge on sodium is +1. Next, yes, sodium is the group first element. Okay, yes, the molecular formula will be Na2O. Okay, means sodium loses 2 electron and oxygen gains 2 electron. Okay, so the how many will it gain to form a compound with oxygen? It's 2 electron. Next, a sample of oxygen contains 2 isotopes of oxygen. Okay, oxygen कितने isotopes बोल रहे हैं यहाँ पर? 2 isotopes. एक का 16U, कितना है? 16U. एक का है 18U. किया हमने
The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen? Okay. 3:1 बोला तो क्या मैं इसको 75% बोल सकता हूँ और इसको 25% बोल सकता हूँ? चलेगा? मिल गया। मास इंटू परसेंटेज ज्यादा है, कुछ ज्यादा रखा, ये है, ये कल ही किया था। यस, मास 16 into 75 plus 18 into 25 divided by 100. Okay. Okay. So the correct option is 16.5. After solving this, you can get 16.5. Completed lecture. इसको लेक्चर में लिया है, बहुत डिटेल में पढ़े इसको, कितने एग्जांपल्स लिए, बहुत लिया, कई बार हो गया रिपीटेड टॉपिक. Yes. Which one of the following, Mayur? Which one of the following is a heterogeneous mixture? Hydrochloric acid, vinegar, milk, soda water. Milk is the correct answer. Milk is a heterogeneous mixture. जब जैसे हम मिल्क छोड़ देते हैं, वहाँ दो फेजेस बन जाते हैं. दो फेजेस बनते ही नहीं बनते. इसके लिए मिल्क क्या हुआ आपका? हेटेरोजेनस मिक्सचर. A mixture that does not have uniform composition is called as heterogeneous mixture. Out of the given component, milk is a heterogeneous mixture of fats, carbohydrate, protein, etc. dispersed in water. Okay. मिल्क कोई एक ऐसा होमोजीनस नहीं कि कंप्लीट आपको लिक्विड है, अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी है. ओके. और उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसमें प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उन सब का वो क्या है? मिक्सचर है. ओके. और उसका जिसको बोलेंगे जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म भी नहीं है. ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है. व्हाट इज, so the correct option will be milk. What is the formula mass of anhydrous sodium carbonate, given that the atomic masses of sodium, carbon, oxygen are 23, 12 and 16 U? Yes, the sodium carbonate, Na2CO3. तनिष ये किया है हमने, 30 एग्जांपल्स मुझे याद अच्छे से. 1 सोडियम का कितना है? 23. तो 2 का कितना हो गया? 46. ओके. 1 कार्बन का हो गया 12. ओके. एक ऑक्सीजन का 16. 16 3 जा 48. ओके. इसको आप कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा 106. देखो आ रहा है कि 106. ओके. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. इंडिया केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लाइव यूट्यूब पे चल रहा है. यूट्यूब पे. यस. तो वही तो बोल रहा हूँ मैं. फिर तो यही तो बोलना है ना हमको कि हमने जो सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन सॉल्व किया वही पेपर में आ गए. लाइव बोल रहा हूँ मैं, बात ही हो रहा है. नहीं, बहुत कम लोगों का डमी अटेम्प्ट है. मैक्सिमम के तो पूरा 12 प्लस के तो मेन अटेम्प्ट है ना. Which one of the following is called as the syngas? Syngas means synthetic gas. याद रखिए. The another name of the syngas is water gas. Is water gas. Keep in mind always, water gas is a carbon monoxide plus hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen. The correct option will be C. Okay. वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2. इतने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर. मैं 300 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा कि मैं जब तक के भी बैठा हूँ 300 क्वेश्चन सॉल्व करना. 38 चल रहे हैं. ओके. इसके इतने बार क्वेश्चन आए हैं, इतने रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं कि क्या करें. ठीक है. इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको, ये वाले रिएक्शन के लिए. इसके लिए रिएक्शन नेक्स्ट. Which one of the following is a triabasic acid? Which one of the following is a triabasic acid? Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid और phosphoric acid. देखो इधर समझ के लेते हैं.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। ओके, और फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। ट्राई बेसिक एसिड मतलब एसिड हैविंग नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1। इसके पास कितने हैं, 1। इसके पास कितने हैं, 2। और इसके पास कितने हैं, 3। तो ये रहेगा आपका ट्राई बेसिक एसिड। तो ये क्या रहेगा, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड और ये ट्राइबेसिक एसिड। क्लियर? ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉस्फोरिक एसिड। जैसे ये ट्राइबेसिक एसिड है ना, तो एक आता है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, देखो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी कैसे डिसाइड करते हैं? अगर एसिड की बेसिसिटी निकालना है, एसिड की बेसिसिटी निकालना है, तो आपको देना होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस है, उसमें कितने हाइड्रोजन में, और बेस की एसिडिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। समझा? ओके, मुझे बताओ ये कौन सा एसिडिक बेस है, कितने OH है इसमें, एक OH। अरे समझा? तो इसको बोलेगा मोनो एसिडिक बेस। ये क्या रहेगा, कैल्शियम है, OH2 है। डाई एसिडिक बेस, चलिए ये क्या रहेगा, ALOH थ्राइस। ट्राई एसिडिक बेस। ओके, नेक्स्ट। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। Which one of the following statement, तो ये हो गया ना, which one of the following statement is not correct? Not correct. All carbons in diamonds are linked by carbon-carbon single bond is very correct. करेक्ट है, क्योंकि डायमंड जो है वो sp3 है, और जहाँ sp3 आ रहा था वहां सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड। मतलब पहला वाला करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट वाला चाहिए। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। यस, ग्रेफाइट में लेयर्स होती है, लेयर्स, ये भी करेक्ट है। ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग, यस वेरी करेक्ट है। ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये इनकरेक्ट है, इसलिए कि ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, और उस sp2 जो आ गया वहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये बोल रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहा है, डी। कितना इजी है, समझे? ये चीजें होती हैं, और जेई को भी इजी होती है, सब हार्ड लैंग्वेज है, जेई को भी इतना इजी होता है, जेई में पढ़ना पड़ता है, जेई में बहुत टफ होता है। पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं है ना, आप प्रॉपर टाइम टू टाइम सब पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आप इजीली कर सकते हैं इसको। Which one of the following solution will have pH less than 7? आप जानते हैं बहुत अच्छे से pH मतलब क्या होता है, pH मतलब उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो किसका pH लेस देन 7 रहेगा, लेस देन 7 मतलब 1 to 6 रहेगा, एसिड में किसका रहेगा, तो NaOH, KCl, FeCl3 और NaCl। तो FeCl3 क्यों आंसर आ रहा है कि FeCl3 is a salt of strong acid HCl and weak base FeOH thrice. As a result, FeCl3 is an acidic salt and hence in the solution form its pH lies below 7. Okay, ये जो सॉल्ट बना हुआ है ना, तो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है। तो FeCl3 कैसे फॉर्म हुआ है कि किसके किसके साथ में रिएक्शन हुआ है, HCl का रिएक्शन हुआ FeOH3 के साथ। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर Fe है, OH थ्राइस है, और वो HCl के साथ में रिएक्शन किया उसने, ठीक है, ट्राइसिडिक में, ठीक है।
तो ऐसा फॉर्म हुआ है, फॉर्मूला है FeCl। नेक्स्ट, which one of the following is an oxidation reduction reaction? अभी लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा ये पढ़ा है। हाँ सर। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, रिडक्शन में डिक्रीज। देखो मैग्नीशियम नेटिव फॉर्म में 0, ऑक्सीजन नेटिव फॉर्म में 0, लेकिन यहाँ पर उसका हो गया +2 और इसका हो गया -2। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पर आ गया, मेन ऑप्शन पे। तो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम अपने नेटिव फॉर्म में इसके लिए 0, ऑक्सीजन अपने नेटिव फॉर्म में इसके लिए 0 और फॉर्म कर रहा है 2MgO। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन का -2 और मैग्नीशियम का +2 हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का 0 से कितना हो गया, +2 बढ़ गया है, और इसका 0 से कहाँ हो गया, -2, यानी इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये क्या है, रेडॉक्स। करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, next question. Which one of the following is not used as a fertilizer? Yes, nitrate is used as a fertilizer. Okay, but phosphate also or sulfate also, but not the sulfide. एक बार ध्यान, nitrate means NO3, phosphate PO4, and sulfate SO4. The sulfide is just S, is not used as a fertilizer. Okay, ammonium nitrate, ammonium phosphate, ammonium sulfate, but not the ammonium sulfide. Okay, next, which one of the following is the chemical formula of gypsum? एकदम normal, calcium sulfate dot 2H2O is the gypsum, is the gypsum. When heating gypsum, they form calcium sulfate dot half H2O. आधा वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट। हाफ H2O, ये वाला फॉर्मूला है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पैरिस। एक ही उसमें दो क्वेश्चन हो गए। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ओके, तो कहाँ है ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ओके, जब उसको हीट कर देते तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो रहा है, तो हाफ H2O से क्या बन जाएगा, वो बोलो POP। क्या बन जाएगा, POP। नेक्स्ट, which one of the following statement about the law of conservation of mass? अभी हुआ जस्ट, law of conservation of mass क्या है, mass can neither be created nor be destroyed। मतलब हम मैटर भी बोल सकते हैं, मैटर डिस्ट्रॉय। कितना इजी, कल ही हुआ। कितना इजी, देखिए नेक्स्ट वाला। Which one of the following properties is true for a toothpaste? देखो, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, हमारा जो मुंह जो जिसको बोलेंगे माउथ है हमारा, जो उसका अंदर का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। अब जो टूथपेस्ट ले रहे हैं वो बेसिक लेना होता है, जब जाके वो न्यूट्रल हो जाता है। और टूथपेस्ट कैसे चाहिए आपको, ओके, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैंने, इसका ऑप्शन इट इज बेसिक। नेक्स्ट, which one of the following gives the highest amount of hydrogen ions? हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लेमन जूस और गैस्ट्रिक जूस। ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। अब इन दोनों के अंदर में देखिए, अब लेमन जूस है और गैस्ट्रिक जूस है, जो कि आप जानते हैं गैस्ट्रिक जूस जो कि HCl होता है उसके अंदर। Okay, the acidity is the measure of the concentration of hydrogen ions present in the substance dissolved in a liquid. Among given option, lemon juice is the most acidic substance, thus it has the highest amount of hydrogen ions. सबसे ज़्यादा highest कौन है यहाँ पर acidic में, lemon juice, not the highly. Okay. Brine is an aqueous solution of NaCl. नमक का पानी, brine मतलब क्या होता है, नमक पानी, is an aqueous solution of, समझा ना, तो क्या आंसर है, NaCl। Which one of the following is the chemical formula of washing soda? क्या क्वेश्चन है यार।
वॉशिंग सोडा जानते हैं आप लोग? Na2CO3 क्या होता है? अभी हमने उसका निकाला ना 106 आया था आंसर। ओके तो क्या है? NaCO3 बी ऑप्शन। ये जो 10H2 दिया ना इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर ये क्या है? ए वाला बोलो मुझे क्या है? वॉशिंग सोडा कि बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा। और ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। ठीक है नेक्स्ट। Which one of the following is not true for the bleaching powder? It is used as a reducing agent in the chemical industries. It is used for bleaching wood pulp in a paper factories. It is used for disinfecting drinking water. It is used for bleaching linen in textile industry. ए जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? It is used as a reducing agent in the chemical industries. तो कैल्शियम जो कि आपके पास जानते हैं आप बहुत अच्छे से, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसके पास में क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, दूसरे को क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। फिर वापस से बात है ये, which one of the following is the number of water molecule that share the two formula unit of calcium sulfate in plaster of Paris? अभी देखा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या? बोलो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2O मतलब क्या हुआ? उसमें याद है आपको क्या थे? 2H2O थे उसके अंदर में, कैल्शियम सल्फेट थे और 2H2O। अब बताओ मुझे 2 का हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 1 वाटर मॉलिक्यूल। समझा? उसमें पूछा कितने वाटर मॉलिक्यूल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑप्टेन? जानते हैं बहुत अच्छे से। जस्ट आप क्या करते हैं? जस्ट आपको मीथेन लिया आपने, जस्ट उसको आपने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ में उसको बर्न किया तो क्या हुआ? कार्बन अलग हो गया और साथ में बाहर निकल गया 2H2। ये जो कार्बन मिला है इसे बोलते हैं हम कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं इसे? कार्बन ब्लैक। कैसे मिला है? By heating wood at high temperature in absence of air, by heating coal at high temperature in absence of air, by burning hydrocarbon. Yes, correct. Yes, correct. C option. Which one of the following property is not true for the graphite? ग्रेफाइट याद है ना, डायमंड का क्या होता है? sp3 और ग्रेफाइट का क्या होता है? sp2। डबल बॉन्ड। ओके डबल बॉन्ड sp2। तो नॉट ट्रू बोला है। Hybridization of each carbon atom is sp3। Wrong है? Wrong. Hybridization of each carbon atom is sp2। Correct है। Electrons are delocalized over the whole sheet of atoms और each pair is composed of hexagonal ring। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? ए वाला। बाकी सब करेक्ट है। sp2 भी है और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं और हेक्सागोनल रिंग भी है। तो इनकरेक्ट वाला और हमारा आंसर रहेगा ए। ठीक है। Which one of the following is the purest form of carbon? Purest form of carbon. ओके तो चारकोल है, कोक है, फ्लोरीन है, कार्बन ब्लैक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन ब्लैक। अभी करा है हमने। CH4 प्लस O2 gives कार्बन प्लस 2H2O। इसे ही बोलते हैं कार्बन ब्लैक और यही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है नेक्स्ट। द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू। याद रखिए जब क्या होता है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोल रहा है कि इसका पॉइजनस नेचर क्यों है? जैसे ही जो है ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में? ब्लड। तो हेमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये फॉर्म कर देता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या फॉर्म कर देता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ओके देखिए यहाँ पर आपको सेकंड फर्स्ट ऑप्शन देखो, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन और एबिलिटी टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड और प्रॉपर्टी हैविंग अ वन
सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देता है। उस कार्बन उसको बोलते हैं हम उस कॉम्प्लेक्स को कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इट इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। In blood, when the concentration of carboxyhemoglobin reaches about 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. The oxygen deficiency results headache, weak eyesight, and nervousness. जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स थोड़ा थोड़ा कम होगा और कार्बोक्सी का बढ़ेगा, तो क्या होगा, यस उसके अंदर होगा जस्ट आपको थोड़ा सा हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, वीक आई साइट होगा, नर्वसनेस हो जाएगा। ठीक है। Which one of the following alkali metal has lowest melting point? एकदम नॉर्मल है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। ओके, एकदम याद रखिए, as we move from top to the bottom, melting point decrease. Okay, sodium, potassium, rubidium and cesium। ठीक है, याद रखें। तो सबसे लोवेस्ट बोला ना, तो सबसे लोवेस्ट किसका लेना, सीजियम। Which one of the following metal is alloyed with sodium to transfer heat in a nuclear reactor? सोडियम के साथ में कौन सा मेटल ऐड होगा जब जाकर वो कैसे अलॉय करके यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे वो हीट ट्रांसफर होती है वहां पर। याद रखें, सोडियम के साथ में पोटेशियम यूज होता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से अलॉय क्या होते हैं। यस, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट, which one of the following is the cause of acid rain? Ozone, O3, ammonia, NH3, sulfur dioxide, SO2, and carbon monoxide. Yes, the acid rain causes due to sulfur dioxide. Okay, next. The desirable range of pH for drinking water. ड्रिंकिंग वाटर का पीएच क्या है? हम ड्रिंकिंग वाटर कौन सा पीते हैं, न्यूट्रल पीते हैं ना। 7.0। The pH of pure water is 7। अगर एसिडिक थोड़ा हुआ पीते ना, तो भी पीते। The pH of pure water is 7. In general, the water with a pH lower than 7 is considered acidic. With a pH greater than 7, considered basic. The normal range of pH in the surface water system is 6.5 to 8.5. The pH range for groundwater system is between 6 to 8.5. Okay, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपका जो है यहाँ पर बोल रहा है, देखो pH रेंज इन सरफेस वाटर उसका pH कितना होता है, 6.5 to 8.5। And the pH range for the groundwater system in which 6 to 8.5। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बोल रहा है कि वो कितना होता है, 6.5 to 7। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं गूगल पर करके ड्रिंकिंग वाटर का, तो आपको 6.5 to 8.5 देंगे। क्या देंगे, 6.5 to 8.5 करो।
Okay. Yes. Consider the following reaction. Combustion reaction. Methane reacts with 2O2 gives carbon dioxide plus 2H2O. Which of the following about the reaction given above is are correct? इसमें बोला है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, कार्बन इज रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इस कार्बन में, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ और उसने फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ओके, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, कार्बन इज रिड्यूस्ड, तो सिर्फ उसका ए आंसर है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Water boils at lower temperature at high altitude because their pressure is less. Their pressure is less. Okay. How much carbon dioxide is produced on heating 1 kilogram of carbon? How much carbon dioxide is produced on heating 1 kilogram of carbon? कार्बन को आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं और ये फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि 1 kg। इसका कितना मास यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, हमको इधर दिया है मास कार्बन का, मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना अपने पास में? मोल का फॉर्मूला क्या? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास दिया है 1 kg, मॉलिक्यूलर मास कितना कार्बन का? 12। कितना 1/12 कितना हो गया? 1/12 फास्ट। 1/12 यस, वो हो गया 0.08 मोल, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका मास निकालने का है, तो फॉर्मूला हमारे पास में मोल डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मोल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल आ गया हमारे पास में 0.08 आ गया, मास निकालना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 से तो आता है 3.6। तो किसका फ्रैक्शन में जो है 3.6 आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। पहले दिया है 11/3, 11/3 यस, आंसर विल बी ए। मैं समझे नहीं कैसा किया? नहीं समझा? ओके। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? देखिए मैं नीचे लिखा उसका। क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन आपके पास में 1 kg है। कितना है? 1 kg। जब हम इसको बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो कितना फॉर्म हो रहा है? इसका मास बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो हमने देखो ये 1 kg दिया था, तो पहले हमने उसका मोल निकाला, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास दिया था 1 kg डिवाइडेड बाय 12। ओके, 12 क्यों आया? कार्बन का मास और मोल आया हमारे पास में 0.08। अब जस्ट इसका हमको मास निकालने का था, तो फॉर्मूला है मास मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब मोल आ गया था हमारे पास में कितना? 0.08। मास निकालना है हमको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मालूम है 44। 44 इंटू 0.08 किया तो आ गया 3.6, जो कि इससे आ रहा है। Yes. Zinc is used to protect iron from the corrosion because zinc is more electropositive than iron, cheaper than iron, a bluish white metal, a good conductor of heat and electricity. Yes, zinc is more electropositive than the iron. Next, which one of the following gases is placed second in respect of the abundance in the Earth's atmosphere? Yes, कौन सा? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? नाइट्रोजन।
देन नेक्स्ट कौन सा था? ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या देगा? ठीक है ना? क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट। आई थिंक 7th में आया हूँ मैं, चेंज वाला पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? कटिंग ऑफ हेयर, कटिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, swelling of resin in water, or cutting of fruit. Exactly, chemical change. Graying of hair naturally. Yes, graying of hair naturally. Okay, this is a chemical change. Graying of hair naturally. ग्रीन कलर का एक्वेटिक जो वाटर में होता है, हमें देखना पड़ेगा। Which one of the following chemical is used as a washing soda? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो जल्दी। Na2CO3। ये वॉशिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग वॉश। Why is potassium permanganate is used for the purifying and drinking water? पोटाशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 को ड्रिंकिंग वाटर में प्यूरिफाइंग के लिए क्यों यूज करते हैं? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्या करता है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF का यूज कहाँ पर होता है? याद रखिए, इचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है। इचिंग ऑफ ग्लास में उसका यूज होता है। अब इचिंग ऑफ ग्लास मतलब डिजाइन्स ऑन ग्लास। ओके, डिजाइन ऑन ग्लास, समझा? HF का यूज कहाँ पर होता है? इचिंग ऑफ ग्लास। अब इचिंग ऑफ ग्लास था डिजाइन ऑन ग्लास। ठीक है, क्या इजी क्वेश्चन। द स्पीशीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज, अब देखो यहाँ दिया हुआ है क्लोरीन है 17 है और 35। मतलब इसके बता कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? 17। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। अब देखो ऑप्शन 1 में ए में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। ये हो सकता है क्या? नहीं हो। इसके पास में कितने बोलो मुझे? इसके पास तो 15 ही है। 16 है और उसमें से एक प्लस माइनस कर दो तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15। इसके पास 16 है, इसके पास 15 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो 18 है और एक पॉजिटिव है, 18 -1 कर दो तो कितना होगा? 17। तो ये आ गया आंसर। और 16 है और उस पर दो पॉजिटिव नेगेटिव कर दो तो ये हो गया 18। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हिंदी में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द कंपाउंड C6H12O4 contains, सिर्फ इतना देखना है आपको, तो इसको देखो, C6H12O4 22 atoms per mole, twice the mass percent of hydrogen as compared to the mass of percent of carbon, 6 times of the mass percent of carbon as compared to the mass percent of the hydrogen, thrice the mass percent of hydrogen as compared to mass of percent of oxygen। मुझे बताइए कौन किसका डबल है? कार्बन से डबल किसका? हाइड्रोजन का है। अरे सही है क्या? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है ना, तो हाइड्रोजन इज द ट्वाइस ऑफ कार्बन। ओके, ऑप्शन बी देखो, ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ कार्बन। और सी वाला देखो ऑप्शन, 6 times the mass percent of carbon as compared to the mass percent of hydrogen। Yes,
क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और कार्बन का कितना है 12। अगर हम यहाँ पर उसको नोट करते हैं तो कार्बन का 12 होता है। अब एक कार्बन का 12 है और तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 6 72। ओके, कितने टाइम्स बढ़ रहा है 6 टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या है? अरे समझा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 12 का कितना हो गया 12। ओके, अब एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का कितना हो गया 72। ये मिल गया हम लोग यहाँ पर। तो दोनों का 6 टाइम कैसे है मास परसेंट ऑफ कार्बन मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ओके यस, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ही बता सकते हैं मुझे डायनामिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन है, अब जानते हैं बहुत अच्छे से, एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में है, तो अब उसके ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है अपनों को। इसमें मैं अभी तक नहाया भी नहीं, 2 बजे तक ही नहाया। टेंथ में तो जब की बात है नहीं, 11th में जब स्टार्टिंग में आया था ना तो कुछ समझते नहीं था, जाके आ जाती है ऐसे ही। इसलिए गया शर्ट मिल रहा है फ्री का, उधर खाने को भी मिलेगा बुली में। कौन से पेपर में गए थे, कौन सा पेपर था? मार्केटिंग स्कॉलरशिप के लिए। The ionization energy of hydrogen atom in the ground state. Okay. The ionization energy of the hydrogen atom in the ground state is 13.6 mega electron volt, 13.6 electron volt, 13.6 joule और 0। याद रखो उसका है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा। कल वो प्रोफेसर आए ना, वो बता रहे थे लेकिन समझ नहीं आया। याद रखो वो रहेगा 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। और इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं तो वो इतना आता है। नेक्स्ट, when pure water boils vigorously, the bubbles that
rise to the surface are composed of primarily. जब वाटर है उसको बॉईल करें तो उसके सरफेस पर क्या आता है? वो बबल्स जो आते हैं वो एयर के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं और वाटर के होते हैं. किसके होते हैं? वाटर के होते हैं. वाटर वेपर ही होते हैं ना. वाटर वेपर. Which compound when dissolved in water conduct the electricity and form basic solution? Yes, NaOH. कौन सा? जैसे ही NaOH को वाटर में डाल देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है. क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट. और आप जानते हैं कि NaOH बेस है, तो जिसमें भी डालेंगे वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर वापस देखो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है. Molecules of which of the following has cage-like structure? Yes, fullerene. क्या होगा इसका? fullerene. Fullerene ऐसा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. कैसा होता है? फुटबॉल. ओके, आपने देखा होगा ऐसा, मतलब ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऐसा अटैच होते हैं कार्बन एक दूसरे को. ओके, तो क्लोरीन, fullerene. नेक्स्ट. Temporary hardness in water is due to which one of the following of the calcium and magnesium? yes, उसके जो होते हैं वो होते हैं कार्बोनेट्स. कार्बोनेट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के. कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से वाटर के अंदर पर टेम्पररी हार्डनेस होता है. टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम. ओके. Which one of the following element is least reactive with water? Lithium, sodium, potassium, cesium. So the is the lithium. As we move from top to the bottom, reactivity increases. Among the given element, lithium is less reactive with water. Lithium density is only about half of water. Okay. लेकिन एक बात याद रखें कि जितने भी हैं, मतलब लिथियम है आपके पास में, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, पोटाशियम है. ओके, तो ये सब वाटर के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं. लेकिन इनके कंपैरिजन में मतलब सोडियम, पोटाशियम, सीजियम और लिथियम, इसके अंदर लिथियम सबसे कम रहेगा क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. Which batch? कौन सा बैच? 11th और 12th. Okay, as we move from top to the bottom, the reactivity of water increases. Next question. क्या नाम है आपका? Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. Rutherford scattering experiment में क्या डिस्कवर हुआ था? Yes, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था. इसलिए कि उसके अंदर आपने सुना होगा उसने 3 जो है वहां पर ऑब्जर्वेशन निकाले और 3 उसकी वजह से रिजल्ट्स निकाले थे. उसने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है तो वो डायरेक्टली कुछ पार्टिकल्स जो डायरेक्ट उसमें से पास हो रहे हैं, कुछ सर्टेन एंगल से चेंज हो जा रहे हैं और बहुत कम जो है वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब उसको लगकर वापस आ रहे. तो जो डायरेक्टली पास हो रहे थे उससे बताया था उसने कि अंदर जो है कुछ तो मास है, कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली पास हो रहे. कुछ जो है सर्टेन एंगल से रोटेट हो रहे थे तो मतलब अंदर समझे कि कुछ मास है उसके अंदर, और कुछ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे थे तो अंदर कहाँ के अंदर बहुत स्ट्रांगली जो है अंदर क्या है, एक मास है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. तो इसी के अंदर में रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर में न्यूक्लियर डिस्कवर होता है. ओके. ग्लास. ग्लास इज अ लिक्विड कोलाइड नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड. याद रखें ये नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड होता है. कैसा होता है? नॉन क्रिस्टलाइन. ओके, एमोर्फस सॉलिड. Next question. The amount of heat required to change the liquid to gaseous state without any change in the temperature. Okay. किसको कहाँ पर लेकर जाना है? लिक्विड को कहाँ लेकर जाना है? गैस के अंदर. विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो बताइए इससे हम क्या बोलेंगे?
specific heat capacity, mechanical equivalent of heat, latent heat of vaporization और quenching latent heat of vaporization. ये टॉपिक में पढ़ा है, क्वेश्चन डिस्कस करके हम डालेंगे यहाँ पे. होमोजेनस मिक्सचर कंटेन्स टू लिक्विड्स. होमोजेनस के अंदर में दो लिक्विड्स हैं. ओके, अब वो दो लिक्विड्स हैं, हाउ दे आर सेपरेटेड. अब लिक्विड लिक्विड में कंबाइन, अब जब दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है तो टेक्निक डिस्टिलेशन. कौन सी टेक्निक होती है? डिस्टिलेशन. एक बार ध्यान में रखें, दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है डिस्टिलेशन, सुना होगा आपने डिस्टिलेशन, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कौन सा होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यस. डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लार्ज होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लार्ज होता है तब यूज करते हैं जो है डिस्टिलेशन. जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, लेस होता है, तब यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कब यूज करते हैं? जब लेस डिफरेंस. नेक्स्ट, which one of the following element form highest number of compound? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन. कार्बन पूरा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना. कौन सी प्रॉपर्टी उसकी? कैटिनेशन. कौन सी प्रॉपर्टी? कैटिनेशन. कैटिनेशन की बेसिस पर वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. मिलियंस में और बिलियंस में कंपाउंड्स है कार्बन के. Which one of the following element corrodes rapidly? Aluminium, iron, zinc, silver. कौन रैपिडली करोड होगा बताइए मुझे. एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सिल्वर. एल्यूमिनियम करोड होगा क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी ज्यादा है. नेक्स्ट, 20 ग्राम of common salt is dissolved in 180 ग्राम of water. What is the mass percent of salt in the solution? एकदम नॉर्मल है. अगर देखिए मुझे यहाँ पर निकालना है मास परसेंट. क्या निकालना है? मास परसेंट. मास परसेंट फॉर्मूला आप जानते बहुत अच्छे से. मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी. तो मास ऑफ ए मुझे दिया हुआ है. मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 ग्राम. कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम. और मास ऑफ बी दिया हुआ है मुझे 180 ग्राम. 180 ग्राम सिंपल है. और 20 दिया हुआ है. 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 20 एंड 200. बोलो मुझे कितना हो रहा है? बोलो जल्दी. 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100. और कितना आ रहा उसका आंसर? 10%. कितना परसेंट? 10%. ऐसा समझा कि आपको फॉर्मूला है. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि आपके पास में 20 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट है. उसको आपने कितने ग्राम वाटर में ऐड किया हुआ है? 180 में. फॉर्मूला क्या? मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ ए, जिसका आपको निकालना है वो लेने का ऊपर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल, टोटल का मास लेने का. तो ए 20 है और मास ऑफ ए कितना था? 20 था. और बी कितना था? 180 था. 180 और 20 कितना हो गया? 200. 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100. तो कितना परसेंट आ गया वो? 10%. The valency of an element depends upon the valency क्या होती है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. करेक्ट. ये नेक्स्ट देखिए इधर ध्यान दीजिए. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. आप जानते हो नियॉन के लाइट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लाइटिंग आती है उसकी. यस. और क्या जानते हैं आप? बताइए मुझे. एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट वो लाइटिंग भी यूज होती है ना वहाँ पर, उसकी लाइट जब वो लैंडिंग करता होगा. लिस्ट 1 में पूरे नोबेल कैसे दिए हुए आपको? आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. बोलिए. आर्गन का यूज होता है टंगस्टन फिलामेंट में. क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट टू लास्ट लॉन्गर. नेक्स्ट,
क्रिप्टॉन एयरपोर्ट लैंडिंग में हो रहा है, और बचा है हमारे पास xenon इन फोटोग्राफर्स फ्लैश गन। फोटोग्राफी में कौन सा मेटालिक हलाइड यूज होता है मालूम है आप लोगों को? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is difficult to measure the coefficient of expansion of liquid than solid? expansion of liquid को measure करना difficult है than the solid. Liquid tend to evaporate at all temperature. Liquid conduct more heat. Liquid expand too much when heated. Their container also expand with heated. तो करेक्ट यहाँ पर दे रहा है कि हम उसका जो है एक्सपांशन का कोएफिशिएंट क्यों नहीं मेजर कर सकते लिक्विड के, इसलिए कि जब उसको आप हीट करते हैं तो उसका कंटेनर भी उसके साथ में क्या होता है? एक्सपांड होता है। ओके, नेक्स्ट, रेडॉन। रेडॉन क्या है जानते हैं आप लोग? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो क्या है वो? एक इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस। Which one of the following element is used in the pencil lead? बोलिए, बोलो जल्दी। बी या सी या डी? ए बी सी डी, बोलो जल्दी। ग्रेफाइट। क्या यूज होता है? सर ग्रेफाइट। यस, हीटिंग कैम्फर। अब जानते हैं कैम्फर कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड। सॉलिड, और उसको हीट कर रहा है गैस। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या में कन्वर्ट हो रहा है वो? हाँ, ये देखो अभी, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर अप टू रूम टेम्परेचर, और कुकिंग ऑफ एग, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर। यस, मैंने देखा है कैंसर जलाते समय एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, सूटी फ्लेम बोलते हैं उसको। वो गैसियस में रहता है कि सॉलिड में? देखिए अभी आप, हीट कैम्फर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और कन्वर्ट होता है गैस में। तो हम बोल सकते हैं हीटिंग कैम्फर क्या सब्लिमेशन रहेगा? अरे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है ना गैस में। ओके, अब देखो ये बोल रहा हूँ मैं, वाटर है आपके पास में, ठीक है? वाटर को आप कूल कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। तो मैं बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। अब देखो कुकिंग ऑफ एन एग, कुकिंग ऑफ एन एग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट द रूम टेम्परेचर, वो इवोपरेशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा उसका, देखो ए का 4 है, बी का 3 है कंडेंसेशन। यस, ए ऑप्शन उसका है। ओके, तो करेक्ट आंसर उसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनिष, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग जीरो वैलेंस। जीरो वैलेंस किसकी? इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैस कौन है इसके अंदर? रेडॉन। करेक्ट। क्या क्वेश्चन है सुनो इधर, आपको सॉल्व करना है तनिष। हाँ सर। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन 6 बोल रहा हूँ मैं। प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? मैं क्या पूछा है? अगर देख कर बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। प्रोटॉन कितना है? 6। न्यूट्रॉन कितना है? 6। तो कितने रहेंगे एटॉमिक नंबर? जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसका क्या होता है? तो कितना है? 6 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका? 6। ठीक है, क्या बात है? Which one of the following has a different number of molecules are kept at normal temperature and pressure? थोड़ा सा नॉलेज लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मल। ऑप्शंस दे देता आपको यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में दिया है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया है
42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 2 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ के लेना पड़ेगा। आपका हो गया कि यूटी हो गया आपका यूनिट टेस्ट? इसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे वो एपीएस वालों को, एपीएस वालों देते नहीं, उनको पेपर नहीं देते हैं। क्या पूछा है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको पहला चैप्टर आना चाहिए, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए फॉर्मूला है कि पहले मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला है, बोलो मुझे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना दिया हुआ है आपका? 3। ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना? हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया? 3। अब उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवोगैड्रो होता है आपके पास में 3n है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन का मोल निकालने का अपने को यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे पास में मोल का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ आपका? 48, और ऑक्सीजन का मास कितना है बोलिए मुझे? 16। ये आ गया आपका 3। कितना आ गया? 3 आ गया। मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 3n आ गया। कितना आ गया? 3n है। सेम आ रहा है इसका, देखिए। अब नाइट्रोजन है आपके पास में, वही फॉर्मूला मोल का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है। ओके, 42 है डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 है। 14 डिवाइडेड बाय 42 कितना हो गया बोलिए मुझे? 42 डिवाइडेड बाय 14, ये भी 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, यस। तो 3 आ गया आंसर। आंसर आ रहा है यहाँ पर 3n है। ऑब्वियसली इन तीनों का सेम आ गया तो डिफरेंट किसका रहेगा? इसका रहेगा। देख लेते कितना आ रहा है। 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो रहा? 6। 2 divided by 12, 1/6. 1/6, ठीक है। ये डिफरेंट आने वाला है। तो डिफरेंट किसका है फिर? 2 divided by 2. तनिष सो रहा है, जागते हुए सो रहा है। Which one of the following statement is correct? समझो, कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होती है, आयनिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल होती है, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल होती है, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। एक ही बात है याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में HF है तो डायरेक्शनल बॉन्ड है। कैसे? दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो उसका डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा? क्लोरीन। अगर आपके पास में CH3 है, Cl है, डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा? Cl। क्लियर है? तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बात, क्वेश्चन एकदम इजी है। व्हेन वन स्ट्राइक्स अ सेफ्टी मैच द फर्स्ट स्टेप्स इज। देखिए आपके पास में सेफ्टी, आपके पास में मैच बॉक्स है, सेफ्टी मैच, उसके टॉप के ऊपर रेड फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। जैसे आप उसको करते हैं तो रेड पहले व्हाइट में कन्वर्ट होता है। देखा हुआ है आपने? इतना ऑब्जर्व नहीं किया। अरे देखा हुआ है, अभी आपने किया, वो जला नहीं है, तो देखा हुआ वो सरफेस उसके जहाँ पर वो व्हाइट हो जाता है। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो उसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है। The LPG cooking gas contains propane and butane as the constituent. A sulfur-containing petrol compound is added to the LPG because. अब उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता है, सल्फर क्यों डालते हैं? It lowers the cost of production. It enhances the efficiency of LPG. It facilitates easy detection of leakage of the gas. ये सल्फर की वजह से क्या हो जाता है? उसका जो लीकेज है, उसका लीकेज क्या हो जाता है? उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सल्फर का यूज क्यों किया वहां पर? साजन क्यों यूज किया? डिटेक्शन लीकेज का इजीली हो जाता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैविंग येलो लीव्स विथ डेड स्पॉट्स हैज द डेफिशिएंसी ऑफ। होता है ना, लीफ के ऊपर रेड रेड जो है उसके ऊपर डॉट्स आ जाते हैं, वो क्यों आ जाते हैं? यस, तो डेफिशिएंसी किसकी होती है? पोटेशियम। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सॉइल के अंदर में NPK होता है। क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है। जिसमें इसका परसेंटेज जितना अच्छा, सॉइल उतना अच्छा, फर्टिलिटी उतनी अच्छी, प्लांट उतना अच्छा, फ्रूट्स उतने अच्छे।
ठीक है, एनपीके। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उसमें भी ये चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम्स रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड के भी जो है कुछ आपको टूथपेस्ट दिए जाते हैं, क्यों देते हैं? प्रिवेंट्स प्लेक फॉर्मेशन, हार्डन्स द इनेमल ऑफ द टूथ, किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, प्रिवेंट द टूथ एक। तो याद रखिए उसका आंसर है प्रिवेंट द प्लेक फॉर्मेशन। देखो प्लेक फॉर्मेशन क्या दिया उसका, fluoride toothpaste is sometimes recommended because the fluoride prevents plaque formation and promotes newborn formation. उससे क्या होता है, न्यूबोर्न फॉर्म होती है। ओके, इट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग द बोन, जो बोन्स अंदर की है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है। फ्लोराइड इज एडेड टू पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके। पब्लिक वाटर में क्या ऐड करते हैं, फ्लोराइड। डॉक्टर रिकमेंड करता है जनरली, यस, बिल्कुल राइट। आज जाकर दो, आज देख कर आओ। मैं भी यूज कर रखी नहीं, तेरी नहीं करते, वो ऐड आती है ना मसूलों के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, इधर देखिए कितना इजी रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको देना है रिएक्शन। कितना वॉल्यूम, वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से मिलता है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, गिव्स 2NH3। क्या फॉर्म हो गया, 2NH3। तो ये बोल रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ यहाँ पर, 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी, 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। अरे ठीक है, the setting time of cement is lowered by adding। अब जानते हैं सीमेंट सेट हो जाता है, डायरेक्ट फिक्स हो जाता है, तो उसको भी और कम कर सकते हैं, लोवर्ड बाय एडिंग ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, जिप्सम, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, सिलिका। तो जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, वो और जल्दी वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है जिप्सम। और हमको याद है तनिष, जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जानते हैं, यस। और आप ये भी जानते हैं कि पीओपी का क्या है फिर मयूर, आपको वो भी मालूम है कैल्शियम सल्फेट होता है डॉट हाफ H2O। अरे मालूम है, किया है ना अभी, यस यस यस। तो इमल्शन क्या होता है, इमल्शन लिक्विड लिक्विड में होता है, दो अलग अलग लिक्विड है मिक्स हो गए और उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए। तो देखो क्या दे रहा है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें होते हैं ना, बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कोलाइडल। तो देखो यहाँ क्या दे रहा है, ऑप्शन देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस हैविंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, ट्रू सॉल्यूशन, डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ मेकिंग अल्कोहल, और कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। तो if one mixes up ashes with animal fat, the substance received in the crude form is, तो ये दे रहे हैं यहाँ पर फेरोमोन, सोप है, सीमेंट है, कंक्रीट है। ओके, यहाँ दे रहा है देखिए, सोप बोल रहा है, क्या सोप। आप जानते हैं बहुत अच्छे से सोप में क्या होता है, मैंने ऊपर नोट किया था, सोप इज द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, आप जानते बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आया था तनिष, याद होगा स्टार्टिंग से आप मेरे साथ में, सॉफ्ट सोप में कौन सा मेटल होता है, सॉफ्ट सोप में कौन सा मेटल होता है, तो याद रखें सॉफ्ट सोप के अंदर पोटाशियम होता है। क्या होता है, पोटाशियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में क्या डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद एसिडिक है, जिसको भी इसमें डालेंगे तो, हाँ मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वो एसिडिक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंटरेस्ट लगेगा। पीरियोडिक टेबल आपके पास में, जानते हैं आप लोग, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, अगर किसी ऑक्सीजन के साथ में, मैं पूछने वाला हूँ, अगर ऑक्सीजन के साथ में, ये पीरियोडिक टेबल आपके पास में चलेगा, समझेगा, ओके।
अब जानते हैं, थोड़ा सा समझ के लो, जो यहाँ पर S है, यहाँ P है, यहाँ D है। अगर आप इधर के देखेंगे तो हम बोलेंगे इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर के कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इधर के है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो वो ऑक्साइड एसिडिक होगा। अरे ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस ऑक्सीजन के साथ में, उस ऑक्सीजन ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा? एसिडिक। जब पॉजिटिव वाला ऐड होगा तो बेसिक। ठीक है। और कुछ ही ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। जैसे वो कौन है? H2O। H2O एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडिक भी है, बेसिक भी है, उसको एम्फोटेरिक बोला है। क्या बोला है? जिसमें मिला वो ऐसा काम करता है। ठीक है। क्या बताया मैंने इस पॉइंट में? हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक है। कैसे बोला? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक। तो याद रखो कि अगर आप लेफ्ट राइट साइड के पीरियोडिक टेबल के साइड वाले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो एसिडिक है। अगर लेफ्ट साइड वाले उसके साथ ऐड होंगे तो बेसिक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? क्या क्वेश्चन? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मयूर जानते हैं आप, AlOH3। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 हाइड्रोजन से? कितने हाइड्रोजन से? 3। तो मैं बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 मोल्स। एक कंपाउंड में डायरेक्ट 3 बोल देता हूँ उसको, तो आगे यहाँ पर आंसर उसका। The molar formula of aluminum hydroxide is AlOH3. Therefore, each mole of OLH3 contains 3 moles of hydrogen atom. Okay. Next, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। Which one of the following species not capable of showing disproportionation reaction? क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। हैलोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में मालूम है आपको? NH2 NP5, मतलब 7। कितने हैं? 7। 7 से ज्यादा अगर हो गया ना तो वो ऑक्सीडेशन वहां से चेंज नहीं होगी उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन के लो, पूछूंगा मैं आपसे। इस Cl में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा हमने। ओके। ClO माइनस के अंदर में मैं Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ। तो देखो, एक ऑक्सीजन का -2 है, उधर जाकर वो +2, और उधर ऑलरेडी -1 है, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इस सेकंड में देखो, 2 2 जा 4, 4 - 1 3 चलेगा। नेक्स्ट वाले में देखो, 3 2 जा 6, 6 - 1 5, और इसमें देखो 7। समझा? मतलब ये भी चेंज हो सकता है, ये 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 5 पे, 6 पे, 7 पे। ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये और चेंज हो सकता है क्या? अब नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका? इसलिए कि उसके पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 से और आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, करेक्ट है। ये देखिए हमारे पास में आंसर भी वही है, +7। समझा? कितना इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर? कॉपर ऑक्साइड है, Al2O3, Fe2O3 और Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड ये जो है उसका करेक्ट आंसर है। द बेस एनालाइजर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड टू NaOH प्रोड्यूस। जब वाटर के अंदर में Na2O प्रोड्यूस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर NaOH फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो कितना इजी क्वेश्चन, 9th-10th का क्वेश्चन होता है। मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली, इसी का ना, सॉलिड, लिक्विड, सबसे अच्छा कंप्रेस कौन होता है? गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो करेक्ट आंसर देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। नेक्स्ट, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called as its melting point. The melting point of solid is in an indication of। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में टर्न होना स्टार्ट होता है, वो टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस, सही है। स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज। इसका करेक्ट आंसर बोलिए मुझे क्या है?
अट्रैक्शन को ब्रेक करता ना, मेल्ट करना मतलब जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, तो वो अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, yes, which one of the following element will not react with dilute HCl to produce hydrogen? ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। मर्क्यूरी। ठीक, when a solid is heated it turns directly into gases. सॉलिड गैस में जा रहा, सब्लिमेशन। याद है मैंने एक वर्ड बोला था, वो सिन गैस आया था इसके पहले, सिन गैस, सिंथेटिक गैस, वाटर गैस बोला था मैंने आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बोला था कि लास्ट में और आने वाला है, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है यहाँ पर, देखिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर गैस? तो करेक्ट ऑप्शन बोलो मुझे क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। बोला था ना। ये क्या क्वेश्चन है? एक ग्लास वेसल है, लास्ट क्वेश्चन है तनिष। एक ग्लास वेसल है, is filled with water up to the brine, okay, and the lid is fixed to it tightly. Then it is kept inside a freezer for hours. What is expected to happen? उसको पूरा नेक तक फिल किया हुआ था। जब वो लिक्विड आइस बन जाएगा तो वो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा या डिक्रीज होगा? एक्सपेंड। लिक्विड से सॉलिड में गया, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता, सॉलिड में पूरा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ, द वाटर फ्रीजेस द आइस एंड द लेवल ऑफ द आइस कम्स डाउन। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टॉप करें 10 o'clock। क्या प्रैक्टिस है?